Hi, hi. Hi Mayank, how are you? Good. I think your is your network okay? Because your Yeah, yeah. yeah your video is pausing in between. Is your network okay? Yes, it's fine. Am I audible first thing? Yeah, you are Am I audible. audible? Yes, you are audible. Can you see me? Can you see me Yes, now? it's a bit blurred, but yeah, we can manage. Acha, I don't know. Must be some network issues. That's completely Yeah. okay. How are Hi. you doing? Good, good. How are you? I am good as well. Thank you for coming on to this live with us. It's really a pleasure to have you with Pleasure, us. pleasure, So, pleasure. Yeah. before we go on to ask about you and your career and a profession, I would be wanting to ask about how has this day been for you? Has it been hectic or Good, has it yeah. been Not that hectic, but yeah, it was fine till now. work from Yeah. home impacting your life a bit? Work from. Yes. A Yeah. lot basically, if I say. Yeah. Hmm. So it's little difficult for us to work from home because Yeah. our job is to basically scout for actors and all. So Yeah. it's little difficult for us So, to, how do you manage? How do you work. manage contacting the actors or scheduling their next, schedules and stuff like that? So basically, as of now, if we talk about auditioning actors or scouting actors, we have a database of us Okay. from which we generally look out for the actors, and Mm-hmm. we know okay, यार इस character के लिए we mostly audition this actor, Mm-hmm. or if there is a specific demand के नया actor लेना है, तो we scout generally Yeah. through getting out of the office and scouting for actors like theaters and plays and all. So Mm-hmm. yeah. So, are the auditions going like from this video camera thing, or how is it possible? No, basically, so as of now, we have been taking auditions through self tests. Okay. So they generally we just brief them what the character is all about, what is the Mhm. situation going on Yeah. in that particular scene. So they generally send the self test across to us. Okay. Okay. Is it Yeah, like easier yeah. to judge, or is being on the set easier to get the talent? So it's little difficult right now to scout actors because due to the lockdown we are not able to get Yeah. out of a place, uh, go to watch different plays or Hmm. different mode of scouting actors. So Hmm. it's little difficult for us right now. Makes sense. Plus, digital media has been a lot of help Yeah. to scout new actors. Yeah, Mm-hmm. so it's little difficult right now. Hmm. So yeah, but we Yeah. we are trying to cope up with it. So Yeah. yeah. I think everybody is kind of coping up with this situation in a different way altogether. Like, for example, a lot of companies, or if you go and talk to freelancers, they are also working from home, and it's been very difficult for them. But I think over time, we all learn to adapt to situations like you are doing and your company is Yeah, doing. So I feel yeah, we don't yeah, have an option in that case. yeah. We don't have an option right now until Yeah, unless the vaccine is out and yeah, the situation is little under control with hmm. us. So it's Makes little sense. difficult for everybody. I think it's Mm-hmm. difficult for everybody Yeah, in every field. Yeah. yeah, yeah. I would want you to tell your story of becoming a casting director. From where did you start? Was it always your passion, or how did you come into this So picture? How has no, it it been for was. you? I'll take you a little Yeah, पीछे के क्या how did it start? yeah, yeah. So Obviously. I am basically a law graduate. Okay. I practiced law for approximately 4.5 years in Wow, that's a Chandigarh long High time. Court. Yeah. Yeah. So basically, when I was in college, तो उसी time पे I had a circle of mine जो entertainment industry में बहुत था. Like Okay. I had DJs, I Hmm. had some actor friends. Hmm. We used to do street plays and all. Hmm. So it was हमेशा वो चीज खींचती थी कि यार के
मतलब ग्लैमरस है थोड़ा कह लो, नॉर्मल एक एक छोटे शहर का आदमी कैसा होता है, so you know कि द ग्लैमर ग्लैमर जो जब खींचता है अट्रैक्ट तो हो इट्स जाते हैं। हाँ। या सो सो था, बट आई वाज ग्रेजुएटिंग दैट टाइम, सो आई ग्रेजुएटेड लॉ इन 2010. फिर I then went back to Chandigarh. I practiced law for approximately 4.5 years, and but then yeah, I was not actually happy. Not actually happy, but I was not comfortable doing, and I was not doing it from my heart. So Maybe you were I not was like, yeah, satisfied. yeah, I was Yeah. not satisfied basically. So the lawyer I was working with, so I spoke to him, okay, yaar, I'm not actually comfortable doing it, so what should I do? He was like, यार कि अगर नहीं करना है तो वो करो जो you always have wanted to do. So I shifted to Bombay, and entertainment sector तो हमेशा से शुरू से था, तो ये नहीं था कि यार बॉम्बे जब मैं आया था तो I was here to explore things. Yeah. So in the entertainment industry, but जब ये हुआ देखा, I started with uh, uh, working with one of the casting directors here in Bombay. Okay. So I was liking it, so बस वहां से शुरू हुआ, और I worked with him for around 4 years. Like projects काफी अच्छे थे उनके पास, so like उड़ता पंजाब, we did Race, we Yeah. did Phantom, we did A Death in the Ganj, और Wow. ऐसी कई 6-7 और फिल्में थी, so big banner films. So yeah, so यही था मेरा कि बस वहीं से शुरू हुआ मेरा लाइफ getting into this. Then फिर उनको छोड़ा, so then I started heading the casting department for Harman Baweja. Okay. Wow. So yeah, so for 2 years I headed his company. फिर उसके बाद यार I was like कि चलो दूसरों के लिए बहुत काम कर लिया, खुद now के I लिए should करना। खुद के लिए करते हैं अब. So yeah, so अभी फिलहाल working on few independent projects right now. Yeah. So I'm So- casting for 3 films right now. Yeah. Wow. I think your journey has been quite an inspiring journey with respect to following your passion. Because at times we feel that, Yeah. we're trapped in this corporate culture where we are regularly doing something that we don't want to do it from all our heart. And I think your journey is an inspiration for all those viewers who are watching us and all those people who will watch us after this live because it's going to get saved. So I think it's a message for all of us to follow what we want, because only then we might excel in what we are doing. It's little difficult. It's little difficult to to follow your passion, but I think that was when my you next start question. following it, Yeah, I yeah, think that was it's my little next. difficult. Yeah. So Yeah, so yeah, I adding know. to So, that, yeah, yeah. Sorry, continue. yeah, Sorry. yeah, please. Yeah, I was just asking you, what were the challenges when you faced when you were going to Mumbai? How, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि एक दिन उठ के आपको लगा कि चलो आज मुंबई चलते हैं. मतलब it was always a long thought process. So आपने It was कैसे अपने आप को, yeah. So it took around 1.5 years. मतलब from 2013 mid, I started thinking कि नहीं यार, अपना करते हैं instead of wasting time here, because नहीं, it was not actually अगर मैं कहूँ wasting time, but Yeah. I learned a lot of things from there. So but still I was doing good in practicing law, but still satisfaction एक बहुत जरूरी है when you're working. Yeah. और so 2000 mid के आसपास I started thinking, and फिर उसके बाद it took around 1.5 years to make a decision to move out of Chandigarh and come down to Bombay. Yeah. How was Bombay for you? Was it welcoming? How, मतलब बहुत सारी movies में ऐसा It was. दिखाते हैं when, yeah. Yeah, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, please कि continue. बहुत सारी movies में ऐसा दिखाते हैं when newcomers go to this industry, they are, there's a lot of competition and people are not able to cope up with such things. People are not so welcoming. So how was it for you? See, industry for me was welcoming. Okay. Because I had little bit of support in this industry, so it was
a little easier for me. But for the if I say for the actors, it's very difficult. For casting directors, it's little easy for us to get into. Actors के लिए इसलिए क्योंकि there is a lot of competition in the market. Yeah. कैलकुलेशंस अगर जब ये लॉकडाउन से अगर पहले की कैलकुलेशंस करें तो काफी जो सुनने में आया था कि हजारों लोग रोज उतरते हैं बॉम्बे स्टेशन पे एक्टर्स बनने के लिए. सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू बिकॉज एक फिल्म के अंदर तो कैरेक्टर्स तो उतने ही है ना 40-50 के आसपास या 60-70 के आसपास, और फिल्में भी अराउंड 2000 के आसपास ही बनती है अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूँ. रीजनल और हिंदी सिनेमा की मैं अगर कैलकुलेट करके बताऊँ आपको तो सो 2000 के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूँ 50 के हिसाब से 10,000 की कास्ट बनती है उन 2000 के हिसाब से. या 5 लाख की कास्ट बनती है, तो 5 लाख के हिसाब से भी रोज के अगर हजारों लोग उतर रहे हैं तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट इनटू द एक्टिंग फील्ड फॉर देम. या सो कास्टिंग डायरेक्टर्स फॉर मी कंपटीशन है बट इतना नहीं है क्योंकि इट्स इन द इंडियन इंडस्ट्री इट्स लिटिल अपकमिंग राइट नाउ. क्योंकि अगर आप देखो तो आपने ज्यादा कास्टिंग डायरेक्टर्स का ज्यादा नाम सुना भी नहीं होगा कि कास्टिंग भी कुछ जॉब होती है. सो ये चीजें हैं कि इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी बट फॉर अस फॉर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. या मेक्स सेंस. सो ये आई थिंक जब हम कास्टिंग डायरेक्शन की बात करते हैं जैसे कि आपने बोला कि इतना नाम नहीं है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता दो कि आपका जॉब रोल होता क्या. So, see, if I tell you what's the process and what we actually do, we are basically a vision. We are the eyes of a director. ठीक है. So, डायरेक्टर का काम बेसिकली क्या होता है कि अगर डायरेक्टर ने ही स्क्रिप्ट लिखी है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. और मेजरली क्या होता है कि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी होती है, डायरेक्ट कोई और करता है. ज्यादातर चांसेस ये होते हैं. तो अब डायरेक्टर के पास 10 चीजें करने को. एक प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए देयर आर 50 things. You need a cameraman, you need someone to scout actors, you need a light man, you need someone to do budgeting, you need someone to release that film or the web series. So there are different departments. There are art director people जो art देखते हैं, costumes वाले होते हैं, makeup वाले होते हैं. So these people are basically the eye of the director. What the director wants. Yeah. So जो हमारा काम होता है is basically जब हमें बुलाया जाता है पहले स्क्रिप्ट पिच इन होती है प्रोडक्शन हाउस को. तो स्क्रिप्ट पिच इन होने के बाद अगर राइटर ही डायरेक्टर है सो वो ऑन बोर्ड आ जाता है. अगर नहीं है तो देन दे फाइंड अ डायरेक्टर हु इज बेस्ट सूटेबल फॉर डायरेक्टिंग दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. ठीक है. फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स हायर किए जाते हैं. ओके. वो डायरेक्टर ही हायर करता है? तो नहीं, इनकी रिकमेंडेशंस पूछी जाती है कि आप जब स्क्रिप्ट क्योंकि हर एक अगर जैसे मैं आर्ट डायरेक्टर की बात करूं, अब जैसे संजय लीला बंसाली की फिल्म बननी है तो उसमें अलग टाइप का आर्ट डायरेक्टर आएगा, सेट डिजाइनर्स आएंगे. तो वो हर एक की मास्टरी होती है, उसमें रिक्वायरमेंट होती है. रिक्वायरमेंट से उसको स्किल सेट अगर मैं बात करूं, स्किल सेट अलग है उनका. सो वो रिकमेंडेशंस पूछते हैं, फिर प्रोड्यूसर उनको हायर करता है. तो उसी तरीके से हमें भी रिकमेंडेशंस के थ्रू वी गेट हायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. वी कम ऑन बोर्ड एंड फॉर द डायरेक्टर वी स्टार्ट फर्स्ट वी रीड द स्क्रिप्ट, व्हाट द स्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट. तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो वी नोट डाउन द कैरेक्टर्स नोट डाउन करने के बाद वी जनरली विजुअलाइज, वी अगेन रीड द स्क्रिप्ट, विजुअलाइज के व्हाट एग्जैक्टली द स्क्रिप्ट इज, किस टाइप का कैरेक्टर होना चाहिए. Then we again sit down for a narration with the director and look के यार इस कैरेक्टर के we generally discuss about the character. Okay. So जब वो चीजें होती हैं तो डिस्कशंस के बाद we start scouting for the actors. अब जब हम बात करते हैं कि अगर बड़े मेन प्राइमरी लीड्स की, तो प्राइमरी लीड्स जो होते हैं इट ऑल डिपेंड्स कि हमें नया एक्टर लेना है कि पुराने एक्टर्स में से चलाना है. इट्स बिकॉज the reason is the sellability of a script.
Yeah, makes sense. सो या अब जैसे फुकरे थी, फुकरे आई फिल्म, फुकरे हमने जब करी थी कास्ट, तो फुकरे के टाइम पे सारे अगर देखो पुलकित वगैरह सारे नए लड़के थे। हाँ. पुलकित नया था, वरुण नया था, अली फजल नया था, बाकी भी कैरेक्टर्स नए थे। वो रीजन ये था क्योंकि वो स्क्रिप्ट उस हिसाब की थी, वो स्क्रिप्ट फ्रेश थी, तो उस हिसाब से फ्रेश एक्टर्स लेके आने पड़े। मेक सेंस। सो इसी तरीके से अगर मैं रईस की बात करूं, रईस में यार, रईस वो द 80s वाली 70s वाली फिल्म, तो रईस में वी हैड टू ब्रिंग सेलेबल एक्टर्स बिकॉज वहां पे वही है कि आप क्योंकि वहां पे खर्चा इतना होने वाला है, रिकवरी कैसे करेंगे? नए एक्टर्स पे जनरली ऑडियंस देखने नहीं जाती है फिल्म, उतने बड़े बजट्स की फिल्म। मैं अगर 50, 60, 70 सीआर की फिल्म की बात करूं, फुकरे में वही फर्क था कि फुकरे बनी थी 10 सीआर के अंदर, रईस बनी थी 50 सीआर के ऊपर। तो अब इसी बजट्स का भी उस हिसाब से रिकवरी रेट कैसा होता है, तो उस हिसाब से वी डू दिस थिंग। या अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था कि बजट के हिसाब से भी, मतलब फिल्म के बजट के हिसाब से भी एक्टर्स हम अलॉट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू थिंग दैट यू हैव टोल्ड अस। या क्योंकि सी बजट्स जब बजट्स हमें ना बजट्स भी दिए जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वी नो के वी हैव 60 और 70 की कास्ट, ठीक है। सो वी नो वी डिवाइड कि यार हमारी जो प्राइमरी कास्ट है, जो मेन लीड है, जैसे 6 कैरेक्टर्स है प्राइमरी, उस पे हमने कितना पैसा खर्चना है, सेकेंडरी पे कितना खर्चना है और टर्जरी पे कितना खर्चना है। एक्स्ट्रास तो हमारे पास नहीं होते, एक्स्ट्रास का देयर इज अदर डिपार्टमेंट ओनली जो करता है, तो वो दैट प्रोडक्शन टेक्स केयर ऑफ। तो वी जनरली टेक केयर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी, इनके डायलॉग्स होते हैं। या सो उस हिसाब से वी डिवाइड द बजट। जैसे अगर 5 करोड़ का बजट है कास्ट के ऊपर, तो प्राइमरी पे कितना खर्चना है, सेकेंडरी पे और टर्जरी पे कितना खर्चना है, देन वी डिसाइड। अच्छा, तो वो बजटिंग भी होती है उसमें। तो मेरे को ये पूछना, जब आप किसी को कास्ट करते हो तो किसी भी फिल्म के लिए, तो आपने जैसे कि बोला कि आप बजट तो देखते ही हो, तो आप टैलेंट, लुक्स, क्या क्या और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं किसी को हायर करने के लिए? क्या अब मैं एक बात बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ, अब हर कैरेक्टर का ना एक इफ यू रीड अ स्क्रिप्ट ना, स्क्रिप्ट के साथ वी गेट सिनॉप्सिस ऑफ दैट फिल्म प्लस कैरेक्टर ब्रीफिंग ऑफ द एक्टर्स। So every character has got specific briefing. Okay. कि वो अगर एक बात बताता हूँ, अगर कोई आर्मी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर एक लॉजिकल, एक आदमी के मेंटल में थिंकिंग, मतलब माइंड के अंदर थिंकिंग होती है, यार वो आर्मी ऑफिसर है तो ऐसा दिखता हो, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू विजुअलाइज। सो उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आई एम अ लिटिल ऑन द हेल्थियर साइड, सो फिट होते हैं वो लोग। तो वहां से फिजिकल अपीयरेंस शुरू हो जाती है, फिर वो कहाँ से आया है वो आदमी, क्या फैमिली बैकग्राउंड है उसका, और 10 चीजें होती है जो हम देखते हैं कि कितना पढ़ा है, कहाँ पे बैठा है, किस सिचुएशन में है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी लुक आउट जनरली फॉर व्हेन वी कास्ट फॉर अ कैरेक्टर। ओके, सो अब हर एक कैरेक्टर में, अब हर एक कैरेक्टर में, नवाज के कैरेक्टर में आप पुलकित को नहीं डाल सकते हो, आप पुलकित के कैरेक्टर में आप शाहरुख खान को नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आपकी एज की भी डिफरेंस आ जाता है और बाकी चीजों का भी आता है डिफरेंस आपके। तो ये है, आई थिंक सिचुएशन वाइज आप हर किसी को कास्ट करते हो, एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टोल्ड अस. Can you brief us about your venture, which is the casting venture that you have started your own company? How has it been coming out? Has it been affected by this COVID situation? How are things with you on your professional? So, as of now, yes, it has affected a lot because जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, so अभी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, बट वो सारे पुश हो गए हैं क्योंकि अभी तक लॉकडाउन का पता नहीं है हमें कि लॉकडाउन कब खुलना है। और अगर हम बात करें कि सेट पे अगर ये लॉकडाउन खुल भी रहा है तो कितने की परमिशंस मिलेगी इनको शूट करने के लिए, क्योंकि जो हमें पीछे सुनने में आया था कि 33% ऑफ द क्रू कैन गो उधर ऑन द शूट ऑन द सेट। या सो
अगर अगर 33% के हिसाब से मैं कहता हूँ कि कितना वो अब प्रोड्यूसर के ऊपर है कि वो कितना क्रू लेके जाएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक फिल्म बनाने के लिए जरूरी है। हाँ एड्स वगैरह हो, एड हो या सीरियल हो, तो इजी है वो चीज करना। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेब एंड फिल्म्स, इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू गो विद अ लेसर क्रू, बिकॉज उसके अंदर बहुत चीजें लगती हैं, बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं जब जब हम शूट करते हैं, तो इफेक्ट बहुत किया है। अब जैसे हमारे हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे हैं, वो दे हैव बीन पुश टू मार्च अप्रैल, क्योंकि उसमें से एक फिल्म है जो इंटरनेशनल शूट होनी है, बाहर शूट होनी है। सो सो उस चक्कर में प्लस डेट्स जितनी थी जो मार्च अप्रैल मई जून में जो जिनकी डेट्स अवेलेबल होनी थी, वो अब अवेलेबल नहीं है। सो दे आर बुक टिल जनवरी फरवरी अभी फिलहाल के लिए, अगर नेक्स्ट मंथ भी खुलता है। So all of my projects which we are working on will go on floor post March. ओके। एंड अभी जैसे Yeah. कुछ जो वेब सीरीज है या जो सीरियल्स जो हमारे डेली सोप्स चलते हैं उनका दे हैव स्टार्टेड हाँ शूटिंग, जी। तो हैव यू Yeah, they बीन have. कास्टिंग फॉर देम एज वेल और इट्स जस्ट फिल्म इंडस्ट्री फॉर यू? As of now, I am casting for 2 films right now. ओके Not 2, actually 3 films I am casting for right now, and a web show. Web Okay. show is delayed because वही कोरोना के कारण. So there is no confirmation अभी के when they are planning to go on floor. या So one is the 3 films which I'm talking about. One I cannot disclose. या प्लीज One is with Paresh Rawal ji, ओके जो शूट कर रहे हैं हमारे साथ. So one is that film. So and one is more. तो अभी उसकी अभी बेसिकली अभी लॉकडाउन में ही आई है मेरे पास, तो या मेक सेंस। 3 प्रोजेक्ट्स अभी जो हमारे चल रहे हैं. आपने मतलब ऐसा होता है जैसे कि ब्रांडबर्ग जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, सो वी ऑलवेज मेक प्रमोशंस फॉर ऑल दीज अपकमिंग वीडियोस या कुछ भी कोई लॉन्च होता है, सो हाउ हैज डिजिटल मार्केटिंग प्लेड अ रोल फॉर यू? डू यू थिंक दैट व्हेन इट कम्स टू फिल्म इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग प्लेज अ ह्यूज रोल इन दैट केस फॉर प्रमोशंस Yes, ऑफ yes. कास्टिंग एज वेल? Yes, yes. See, जब मैं बॉम्बे आया था उस टाइम पे इतना ट्रेंड नहीं था डिजिटल मार्केटिंग का जितना अब हो गया, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड इन लास्ट 4-5 years. When I came to Bombay, it was the digital market space was little less. Okay. If I say it, at that time it was 20-25%. Now it is more than 70-75%. Yeah. अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर डिजिटली अगर मैं प्रमोशन हर एक को जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप वेब शोज की बात करो, फिल्म्स की बात करो, या ब्रांड्स की अगर बात करो, जिसमें हम ब्रांड्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एड्स एंड डिजिटल एड्स जो होती हैं. Yeah. सो सी हर एक को जरूरत होती है, क्योंकि unless your product, let it be a product, a film or a web or a TV serial, if लोगों को नहीं पता लगेगा तो वो नहीं देखेंगे. लोग देखेंगे नहीं उसको या बाय नहीं करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट. So digitally, if I talk, the digital marketing has a great influence in our industry, because जो दिखता है वो बिकता है. Makes sense, yeah. जो क्योंकि कुछ भी अगर आज मैं कहता हूँ, आज शाहरुख खान को जो बनाया है वो डिजिटल मार्केटिंग ने ही बनाया है. सलमान खान को जो बनाया है वो डिजिटल मार्केटिंग ने ही बनाया है, क्योंकि वही डिजिटल मार्केटिंग इज वन दैट सेक्टर विच tells people के what exactly is in the market Yeah. and what is coming up. Do you So think that? I think Sorry. yeah. नहीं, yeah, please. No, I was saying that. Do you think that कभी-कभी marketing में when it comes to the film industry, they market or they promote themselves as a, you know, with a wheel on themselves, you know, कि उतना अच्छा दिखा देते हैं किसी मूवी को, एंड जब वो रिलीज होती है देन वो उतनी अच्छी नहीं होती. डू यू थिंक दैट इट्स अ ट्रेंड इन द इंडस्ट्री, और इज इट द काइंड ऑफ यू नो अ टैक्टिक टू अट्रैक्ट पीपल? See, it's all marketing strategy if I be specific about it. क्योंकि ट्रेलर कटिंग अगर मैं बात करूँ, ट्रेलर जब कटता है हमारा फिल्म का, दैट इज ऑल्सो अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी.
क्या सीन्स दिखाने हैं लोगों को, क्या नहीं दिखाना है, ठीक है। तो जो दिखाने वाली चीजें हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत प्रोडक्शन हाउस अपनी चीजें, कई चीज छुपाते हैं, कई चीज दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एट द एंड ऑफ द डे अपना प्रोडक्ट बेचना है। या जब तक आप एग्जांपल देता हूँ, डव, इफ डव इज अ सोप, यू डू पैकेजिंग, यू डू मार्केटिंग, राइट? क्योंकि इन दोनों ब्रांड प्लेसमेंट, सेम इज विद द फिल्म ऑल्सो ना, यू डू ब्रांड प्लेसमेंट। ब्रांड प्लेसमेंट में आ गया शाहरुख खान इज अ ब्रांड, नवाज इज अ ब्रांड, पुलकित इज अ ब्रांड, ठीक है। यू डू अ प्लेसमेंट, यू मार्केट देम। मार्केट कैसे करोगे आप? ट्रेलर दिखा के। ट्रेलर आपको दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पैसे लगे हैं, और आप जितना अच्छा दिखाओगे ऑडियंस उतना ही पुल होगी। That is all in your the people like you, it's in your hands only, how to market it. Because because at the end of the day you guys are the people who are actually connected with the with the audience, if I say. Makes sense. हाँ, मैंने एक मूवी देखी थी ओम शांति ओम, तो उसमें when शाहरुख खान was casting in the second half, when he was casting for a heroine like Deepika Padukone in the first half, so उसमें there were a lot of funny things that happened while they were shooting for that, like एक चुटकी सिंदूर वाला. Has it ever happened with you? कोई ऐसा funny incident जो आप अभी भी recall करके हंसते हो? कुछ ऐसा है जो आप हमको बताना चाहेंगे? Because we all would. मेरे साथ क्योंकि सी हम सेट्स पे तो नहीं होते, वी आर नॉट ऑन द सेट्स, बट हाँ ऑडिशंस के टाइम पे काफी होता है हमारे साथ. सो शाहरुख खान की, इफ यू speak if you are saying about Shahrukh Khan, I have two incidents about Shahrukh Khan. First was when we were auditioning for his film Raees. उस टाइम पे क्योंकि कास्ट बहुत ज्यादा थी, so I still remember लोगों के अंदर कई मतलब यार उन बेचारों एक्टर्स को भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि they want to come on the screen. बट कई लोगों के अंदर ना वो आत्मा आ जाती थी अंदर while they were auditioning ना, शाहरुख खान की आत्मा, अमिताभ बच्चन की आत्मा. तो they were not understanding कि भाई अगर आपने शाहरुख खान एक्ट करके करना है और हमने आपको ही कास्ट करना, तो फिर शाहरुख खान को हम हटा देते हैं. तो वो चीज बहुत थी कि कई लोगों को हमने अंदर देखा, कईयों के अंदर अमिताभ बच्चन आ रहा था ऑडिशन देते टाइम पे, जिस टाइप के अमिताभ बच्चन बात करता है, कंधा टेढ़ा हो गया, या शाहरुख खान हकलाता है हल्का हल्का, कभी जो दिखाते हैं वो फनी वाला जो है उसका मिमिक्री जब करते हैं. तो एक तो ये था कि काफी लोग उसकी तरह कर रहे थे, और सेकंड थिंग, फनी तो नहीं मैं कहूंगा, मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा शाहरुख के साथ. जब आए तो हुआ क्या था, एक बार सेट पे ना कुछ पंगा हो गया था हमारा. तो किसी एक्टर से ना हमने नया एक्टर लिया था, और उससे ऑन द स्क्रीन जाके ना, ऑन सेट से जाके उससे कुछ परफॉर्म नहीं हो पा रहा था. सो वी हैड टू रिप्लेस दैट एक्टर, ठीक है. सो रिप्लेस करने के लिए ना वी हैड टू गो टू द सेट एंड शो राहुल ढोलकिया सम टेक्स, ठीक है. Rahul Dholakia was the director of that film. So me and my colleague were working with Hani at that time. So we went. So तो हुआ क्या, वहां पे यूसुफ हुसैन सर हैं जो इफ यू सीन मायरा खान के फादर बने उस फिल्म में. इफ यू हैव सीन रईस, उसमें जो मायरा खान के फादर बने हैं, तो वो ही मतलब उनके साथ मेरा बहुत प्यार है. So whenever he comes to my office या हनी के ऑफिस आते थे, he used to tell me कि मयंक यार बिरयानी खाने आ जाया कर घर पे, तेरे साथ बहुत प्यार है, बिरयानी खाया कर. ही तो मुस्लिम एंड यू नो मुस्लिम्स की बिरयानी बहुत अच्छी होती है. So हुआ क्या, तो अब मैं सेट पे घुसा हूँ, तो अब यार नया था, हम भी उस टाइम पे मतलब 2 साल हुए थे बॉम्बे आए, तो हम सेट पे ज्यादा कभी गए नहीं थे क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता था. ऑब्वियसली शाहरुख खान था, तो इट वाज फॉर अस आल्सो कि यार चलो एक बार शाहरुख खान को देखे तो थे कि कैसा दिखता है सामने से. तो हुआ क्या था कि जब हम सेट पे पहुंचे थे, तो जब सेट पे पहुंचे तो यूसुफ सर मेरे को मिले. तो जब मिले मेरे को, तो उधर से शाहरुख खान मेरे को दिखाई दिया, मतलब दिखाई नहीं दिया एक्चुअली में. तो उसने क्या किया, जब यूसुफ सर ने मेरे को आवाज मारी, तो मैं उनसे मिलने गया, तो पीछे से अब ऑब्वियसली सेट पे कम लोग होते हैं जब शाहरुख खान वगैरह खड़े हो, ठीक है. जब हम खड़े थे वहां पे, तो अचानक से वो शाहरुख खान मुड़ता है मेरी तरफ और मेरे को कहता है हाय आई एम शाहरुख. मैंने कहा आई नो योर फैन मोमेंट. नहीं, सी आई एम नॉट हिज फैन, बट या कह सकते हो कि इट वाज अ फैन मोमेंट फॉर मी. या आपने रिएक्ट कैसे किया?
react. I was blank for around Yeah. 20-30 seconds. Yeah. यार Can obviously understand. शाहरुख जैसा आदमी कह Yeah. रहा है कि जिसको सारा everyone सारी knows him, तो पहचान। हाँ। yeah. Yeah. तो आई थिंक हमने फनी चीजों के बारे में बात कर ली, हमने थोड़ी सीरियस चीजों के बारे में बात कर ली। तो अब आप मेरे को बताइए कि आपने जैसे किसी को कास्ट किया, जैसे आपने बताया था कि आपने एक बहुत अच्छे एक्टर को कास्ट किया, बट देन ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन द स्क्रीन। सो हैव यू एवर Yeah. रिग्रेटेड योर डिसीजन ऑफ कास्टिंग समबडी, या कुछ? या नहीं यार, see, it's not about being regretting about it. So basically क्या होता है, कभी कभी यार अब उसकी भी बेचारे की गलती नहीं है। कभी एक्टर्स के दिन होते हैं अच्छे, कभी कभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी कभी नहीं परफॉर्म कर पाते, उनके कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। दैट्स फाइन यार, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो इट्स मतलब ओके अगर आपको वो नहीं किसी को, परफॉर्म कर पाया। हाँ, मतलब आपको कोई, मतलब इफ यू आर अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड इफ योर डिसीजन डजंट वर्क आउट वेल बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, सो हाउ Yeah. हैज इट इम्पैक्टिंग योर, मतलब क्या वो आपका करियर या कुछ आपका ग्रोथ इम्पैक्ट करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा हमारे को नहीं करता कुछ इम्पैक्ट, क्योंकि चक्कर ये होता है, क्योंकि जब हम ऑडिशन दिखाते हैं या टेस्ट करते हैं, तो जनरली डायरेक्टर ही चूज करता ना उनको। तो डायरेक्टर जब चूज करता है उनको, तो ऑब्वियसली डायरेक्टर ने भी तो डिसाइड किया ना, उसने भी देखा होगा, AD ने भी देखा होगा, DA ने भी देखा होगा। सो दैट्स द थिंग। सो इट्स नॉट अबाउट रिग्रेटिंग और right or wrong choice. So there are different things which matters. और डायरेक्टर वगैरह हमें कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली गलती तो हर एक से होती है। इवन कभी कभी अब देखो, इफ आई से कि आप कहते हो कि यार इस फिल्म में उसने बहुत अच्छा काम किया, बट उस फिल्म में वो काम नहीं कर पाया, राइट? सो सी, इस हिसाब से तो अगर थ्योरी हम जो लॉजिकली, अगर थ्योरी जो हम मानते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि एवरी एक्टर इज अ डायरेक्टर्स एक्टर, ठीक है? सो इट्स ऑन द डायरेक्टर एज वेल कि वो कितना निकलवा पा रहा है अपने एक्टर से, कितनी अच्छी ब्रीफिंग जा रही है उस एक्टर को। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच एक्चुअली मैटर जब कास्टिंग की बात आती है और जब एक्टिंग की बात आती है। So it's not about regretting, but yeah, choice कभी कभी बुरा लगता है बस उन चीजों को लेके, regret नहीं होता, बस बुरा लगता है। I think coming on a lighter note, our previous guest Sameer has commented on this live saying that the only thing, अच्छा, Sameer is also here. yeah, he says that the only thing you are regretting is not casting him. I am not here to do nepotism, bro. Talking about nepotism, it's a very good point that you have pointed out. What are your views in this industry? How has it been for you? Have you ever encountered nepotism for you, especially? Yeah, see, if I talk about nepotism, ना, nepotism is everywhere, ठीक है? So अगर मैं बात करूँ, अगर what is if I ask you what is nepotism, tell me what is nepotism? मतलब इस तरह कि Influencing, अपने बंदे को आगे ले influencing, अपने बंदे को आगे लेके जाना, ठीक है? आज एक, अगर फॉर एग्जाम्पल योर फादर इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, एंड ही वांट्स you to take ahead his business. Yeah. So isn't that a nepotism? Yeah, it is. In some sense, it is. Yeah. Yes. So same यहाँ पे भी है, ठीक है यार? फोन आते हैं, हम मानते हैं, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर उस इंसान के अंदर, उस एक्टर के अंदर वो टैलेंट नहीं है, why would XYZ producer put money on that particular actor? True. There is a permutation combination, ना? There is a selling point of the film. Yeah. ठीक है, अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, आप सलमान खान ले आओ, आपकी फिल्म हिट है। मैं सिंपल बेसिक रूल्स के, अगर ऑडियंस जो देख भी रही है उनको अगर मैं बताऊं कि अगर, क्योंकि सलमान खान इज अ ब्रांड इन द मार्केट, ठीक है, उसके अंदर टैलेंट हो ना हो, सलमान खान है सलमान खान। सो नेपोटिज्म है, हम हर स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें आते भी है फोन,
हमें बोला भी जाता है कि यार कि किसी बड़े स्टार किड को ले लेते हैं, इवन डायरेक्टर्स भी प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको सेलिंग पॉइंट भी तो देखना है ना अपनी फिल्म का। हाँ. सो ये चीजें होती है, नेपोटिज्म है हमारी इंडस्ट्री में। हम क्योंकि हमें भी अपनी फिल्म बेचनी है, ऑडियंस भी तो वही मांग रही है ना एट द एंड ऑफ द डे। आज आलिया भट्ट को मांग ही रहे हैं ना लोग देखने के लिए। आज But आज I आज think, आज अभिषेक, yeah. या I was क्या just कह रहे saying हैं? that I was just saying कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आजकल न्यूज में बहुत सारा चीजें आ रही है कि नेपोटिज्म की वजह से somebody has taken a negative step in their life. So is it Yeah. like, so I think as an actor nepotism can backfire, but as a director or as a producer nepotism is to gain money at the end of the day. So what are your views when you are Yeah, talking about an actor? सी इफ वही चीज है, आज नेपोटिज्म जहाँ पे जिस लेवल पे है, मैं मानता हूँ नेपोटिज्म है मार्केट। आज मैं उसी इंडस्ट्री को डिवाइड करता हूँ। आज मैं उसी इंडस्ट्री को डिवाइड करता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट आलिया भट्ट, नेपोटिज्म, वरुण धवन, नेपोटिज्म। व्हाट अबाउट हरमन बवेजा, एग्जांपल, आई हैव वर्कड विद हिम, वेयर इज ही? ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर मार्केट, व्हाट पीपल वांट। ये आज इतने इश्यूज मार्केट में उठ रहे हैं कि आप नेपोटिज्म करते हैं इंडस्ट्री में ये होता है, इंडस्ट्री में वो होता है। isn't the audience also of the same responsible for this thing? आज सुशांत की एग्जांपल में बात करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लोग खड़े हो रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट्स अ सुसाइड और अ मर्डर, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज द सीबीआई हैज टू वर्क इट ऑन और द जुडिशरी हैज टू डिसाइड, ठीक है, दैट इज नॉट माय कॉल, ठीक है। बट व्हेन द सेम ऑडियंस आई एम टॉकिंग अबाउट, जब छिछोरे बनी थी, छिछोरे वाज मेड एंड व्हेन इट वाज रिलीज्ड, कहाँ थी ये ऑडियंस? वहां पे तो कोई नेपोटिज्म वाले लोग नहीं थे उस फिल्म में। उस फिल्म में कौन था नेपोटिज्म वाला? सुशांत था, मनोज वाजपेयी था, कहाँ थे ये लोग? यही लोग हैं। खुद ऑडियंस की प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट सपोर्ट एंड दे डोंट वांट टू सपोर्ट। इट्स वेरी इजी फॉर द ऑडियंस व्हेन दे गो टू द थिएटर्स एंड दे से कि यार फिल्म अच्छी नहीं लगी हमें। It's very easy for them to say. Yeah. But उससे पहले जितनी मेहनत कितने लोगों की 100, 150, 200, 300 लोगों का क्रू है जिन्होंने फिल्म बनाई है। कभी आज तक इन्होंने नहीं बोला कि यार मेहनत बहुत अच्छी है, हाँ जो चीज बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। There is a way of speaking things, way of telling things. So these are the main problem. I think audience is also equally important. They want a superstar. They want a superstar. आज एक बात बताओ, आज आयुष्मान खुराना है, he is a star, he is not a superstar. But star से भी ज्यादा he is an actor. Yeah, true. So वही चीजें हैं। आज सलमान खान की फिल्म में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, लोग 2-300 करोड़ रुपए उसको दे आते हैं। बधाई हो जैसी फिल्मों के लिए। It's all about well established actors at the end of the day. Yeah. I think people are equally they play a very huge role in a success of a film. It's basically so when you cast somebody, do you also keep these factors into check? What's the demand in the market and how well we can get the profits out of the film? See, it is somewhere in the end जब हम discussions पे बैठते हैं तो there is a thought and a discussion about the sellability of the actor. ठीक है, but it depends on the script. क्या script कैसी है, हम उसको कैसे मार्केट करने वाले हैं। अगर नए एक्टर्स के साथ काम करना है, आज मैं नए एक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। यार 10 साल के अंदर ना एक फिल्म बनती है सैराट जैसी। If you've seen सैराट, मराठी मूवी which won around 100 crores, ठीक है। क्यों?
क्योंकि लोग देखना ही नहीं चाहते नए एक्टर्स को ना, वो तो बाय चांस उन्होंने बनाई बजट में, फ्री एक्टर्स उठा लाए तो उनकी फिल्म हिट कर गई, वरना कहाँ पूछने जाते हैं यही लोग कहाँ जाते देखने के लिए नए एक्टर्स। और डेथ इन द गंज जिसमें हमने कास्टिंग करी थी, सारे नए एक्टर्स थे, नो नेपोटिज्म। कहाँ देखी मैंने फिल्म? 5 करोड़ में फिल्म बनी थी, 5.5 करोड़ कमा के, ये 50 लाख रुपया, यही वो लोग हैं। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी अबाउट द इंडस्ट्री। आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज साइड हियर, बट द रियलिटी इज दिस थिंग कि लोग नहीं देखने जाते हैं। I think at the end of the day, we are working for the people and to get the profit. So you have to cast people who will give you profits. Yeah. So I think that you are right on your part. This is also, we are working for the people. That's fine. But at the end of the day, it's our business also, na? Yeah. This is our business. We are here to make money. Yeah. The production house is a business house, na? I think अगर आपने हमको ये वाला साइड बताया था, this side of this industry was quite hidden, that that the casting directors or the directors also look at the market to cast somebody. I always knew producers influence करते हैं कि producer बोलता होगा कि take a star kid, but I didn't know that the directors and the casting directors also have that. See, at the end of the day, अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं, डायरेक्टर को तो अपनी फिल्म बनानी है ना, उसको भी तो अपने आप को बेचना, मेरे को भी तो अपने आप को बेचना। वो तो इट मेक सेंस। तो अगर नेपोटिज्म है, इफ देयर इज अ कास्ट ऑफ 60 to 70 पीपल इन अ फिल्म, नेपोटिज्म से कितने लोग आएंगे? 2, 4, 5 मैक्स। उसके अलावा तो जो 60-65 की कास्ट है, दैट इज ऑल न्यू विदाउट नेपोटिज्म। मेक सेंस। सो इंडस्ट्री में है काम लोगों के लिए। So what if you were not a casting director in the industry and you could change your role to somebody else's? अगर आपको अपना जॉब रोल एक्सचेंज करना था किसी से, तो आप किसका करते हैं और क्यों? यार एक्टर बनना है आपको? थोड़ा नहीं, मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता। मेरे से वो चीज होती नहीं यार। आई कांट बी एन एक्टर। मेरे से 10 जनों की गालियां नहीं सुनी जाती है। मेरी प्रॉब्लम वो है। तो क्योंकि एक्टर्स, व्हाट आई फील इज एक्टर्स जॉब इज अ वेरी टफ जॉब, बिकॉज वो एक बार सुबह घर से निकलते हैं, चाय पी के अपना पूरा दिन निकालते हैं, घूमते हैं पूरे आरामनगर में, जहाँ पे बेसिकली अगर आरामनगर, इफ यू नो आरामनगर, व्हाट इज आरामनगर? आरामनगर इज बेसिकली अ प्लेस इन बॉम्बे वेयर ऑल कास्टिंग डायरेक्टर्स आर सिटिंग इन वर्सोवा। Why is it called आरामनगर? आई डोंट नो, पूरा शुरू से ही नाम था उसका, आरामनगर ही है उस पूरे एरिया का। तो लाइक जहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहीं पे सामने मुकेश चावड़ा का ऑफिस है, वहीं पे कास्टिंग बे का ऑफिस है। मतलब वी आर 10-12 पीपल हु आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, वी हैव ऑफिसेस साथ में। सो आपको वहीं पे आपको लोग सारे एक्टर्स सारे दिखाई देंगे आपको। तो अगर मैं कुछ और कर रहा होता तो आई वुड हैव बीन maybe Arnab Goswami. maybe because the way he nails it on the screen, चाहे वो गलत करता है, चाहे वो बकवास करता है, बट मैं उस टाइप की चीज कुछ करता। बट आपने बोला आप किसी की गालियां नहीं सुन सकता। आई थिंक अर्नब गोस्वामी तो सबसे ज्यादा सुनता है। नहीं, सी अब बट वो ऊपर ही तो सबसे ऊपर ही पहुंचा ना। सी एट द एंड ऑफ द डे है तो वो बॉस, सामने कोई नहीं आके बोलता उसको। यहाँ पे एक्टर्स की प्रॉब्लम ये है कि एक्टर्स को मुंह पे बोला जाता है कि यू आर फिट, नॉट फिट, यू डू नॉट फिट द रोल एंड वी कैन नॉट ऑडिशन यू। सो बेसिकली वो चीज है, मेरा मतलब वो है कहने का। हाँ, मैं समझ गई। एक बहुत फन सा क्वेश्चन है जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि अभी आपके बिजनेस जो पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पे 16,000 समथिंग फॉलोअर्स है, एंड वन डे व्हाट इफ यू वेक अप एंड सी दैट इंस्टाग्राम इज नो मोर, लाइक देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंस्टाग्राम, हाउ विल इट अफेक्ट योर बिजनेस? हाउ विल इट अफेक्ट योर कास्टिंग? प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। क्योंकि फर्स्ट थिंग इज कि एक तो स्काउटिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जनरली एक्टर सारे वही फॉलो करते हैं। सो
यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हु वुड बी कुणाल कामरा, तो आई थिंक समीर जिनका आपने पीछे इंटरव्यू लिया था, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही वुड बी कुणाल कामरा, क्योंकि he's like that only वैसा। Yeah, I think if he's watching, he'll रियलिटी get चेक the कराता answer. रहता है मेरे को। Yeah, नहीं वो इज हियर ओनली, yeah. वो मेरे को रियलिटी चेक कराता रहता है बीच बीच में, ब्रो ये चीज हो रही है गड़बड़। I think you always need somebody who gives you reality check so that you can go in the रियलिटी right. चेक, यस, या आई थिंक इफ यू डोंट नो, जब वी वर कास्टिंग फॉर उड़ता पंजाब, so I used to, क्योंकि समीर हैज बीन इन मतलब ही इज बोर्न एंड बॉटम इन चंडीगढ़, तो हम जब मेरे को वहां पे हम पंजाब, क्योंकि उड़ता पंजाब थी, पंजाबी फिल्म है, पंजाब के एक्टर्स ये था, आई यूज्ड टू हैव अ वर्ड विद हिम। I still remember the best part was के when we were casting for it, Honey was the main casting guy है, तो he उसके साथ मेरी बहुत तगड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी, जो रोल दिलजीत कर रहा था, तो he was giving it to गिप्पी गरेवाल, if you know गिप्पी गरेवाल, Yes, I know. तो so he was giving it to him, तो I was like यार कि मैं ना कंफ्यूज हो गया थोड़े टाइम के लिए कि यार कि क्या करूँ, क्या मतलब यार कैसे कन्विंस करूँ कि यार ठीक है कि गिप्पी इज नो डाउट अ गुड एक्टर, बट सेलिब्रिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, दिलजीत इज बिगर, प्लस ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। Yeah, he is. तो मैं आई यूज्ड टू कॉल हिम दैट टाइम कि यार समीर बता कि क्या करे, दिलजीत करना है गिप्पी करना है, कहते पाजी यार बिना सोचे समझे आप दिलजीत उठा लो। तो वो चीजें इसका मेरा बहुत अच्छा तो था उस टाइम पे। Yeah. और वी फाइनली हनी सेड यस के यार चलो आप तू कह रहा है इतना, तो इंस्टेड ऑफ गिप्पी गरेवाल वील डू दिलजीत दोसांझ, Yeah. जिससे आई थिंक इट वाज हिज लॉन्च इन दैट फिल्म इन बॉलीवुड। नॉट टॉकिंग अबाउट द पंजाबी इंडस्ट्री, बट अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो नाउ ही इज गिविंग बैक टू बैक हिट्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। पर मेरा क्वेश्चन वही रह गया, अगर इंस्टाग्राम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हाँ, इंस्टाग्राम नहीं होगा तो मेरा तो खत्म है, मेरे एक्टर्स नहीं मैं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि जनरली आई स्क्रॉल, क्योंकि वहां पे ना बड़ी अच्छी ऑप्शंस आती हैं। यू अगर आप देखो, जब आप किसी एक्टर को फॉलो करते हो या अगर आप उनके पेज पे जाते हो, देयर इज अ राइट पे एरो जो आपको सजेशंस देता है, सजेशंस आ जाते हैं, लुक लाइक प्रोफाइल सजेशंस आ जाते हैं, या सो मैं वो जनरली कभी कभी जब अगर कुछ सोच रहा हूँ किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में, तो जनरली आई स्क्रॉल दैट, क्योंकि यहाँ पे सजेशन आते हैं ना, तो आपको रैंडम लोग जो आपको नहीं पता है वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे आई सर्च, तो अगर वो ना हो तो माय दिस थिंग इज गॉन। आई होप ऐसा ना हो, आई होप ऐसा ना हो आपके लिए या किसी के लिए, बिकॉज इवन डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो सस्टेनिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सो आई होप दैट डजंट हैपन। प्लस मार्केटिंग यू गाइस आर डूइंग अ गुड जॉब यार। जो हमारे प्रोडक्ट्स, जो अगर मैं फिल्म की बात करूं, दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर अस, शोकेस हो पाते हैं डिजिटली। और अब देखो होर्डिंग्स भी अगर देखा जाए, होर्डिंग्स वगैरह से ज्यादा अब लोग डिजिटली प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब वो कंफर्ट जोन में आ गए लोग, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। I think people prefer to be on their phones rather than looking outside for hoardings. So that's a thing. Yeah. नहीं, होर्डिंग्स इज बेसिकली फॉर पीपल हु गो टू ऑफिसेज एंड ऑल, जो ज्यादा फोन पे नहीं लगे होते, सिर्फ कंप्यूटर्स पे लगे होते हैं, ईमेल्स पूरी खत्म कहानी, उनको दिखाने के लिए ठीक है। बट जनरल अगर यंग जनरेशन की बात करूं, एवरीवन इज ऑन देयर फोन। या मेक्स सेंस। एक बहुत फनी कमेंट आया हुआ है कि अप्लाई फॉर बिग बॉस, तो मतलब अगर कुछ ऐसा होता है, मतलब इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन बिग बॉस, वुड यू बी वांटिंग टू गो? नेवर। Any specific reason? हमारी इंडस्ट्री का फनी पार्ट ये है कि जिस जो हम फिल्म्स वाले हैं और वेब सीरीज वाले जो हम करते हैं, वी डोंट कंसिडर टीवी स्टार्स एज टू बी अ स्टार। Okay. So we don't consider them stars. So because TV acting is not acting, अगर मैं बात करूं, हाँ, तो I think I don't, ये ऐसा ना हो कि कुछ लोग दिल पे ले लें यहाँ पे। नहीं यार, सबको रियलिटी पता ही है कि ये है, एवरीवन नोज के यार कि एक जमाना था वो सास बहू वाला सीरियल टाइप्स, एकता कपूर जब बनाती, या हाँ एकता कपूर जब बनाती थी, आज भी है नागिन टाइप्स,
जो हाँ रियलिटी नहीं है दुनिया की, हाँ क्योंकि आई जनरली प्रेफर दोज काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स या फिल्म या वेब शोज जो रियलिटी बेस्ड है. हम्म लाइक पाताल लोक की अगर आप इवन इफ यू या सी पाताल लोक, आई इस हैव तरीके सीन की स्क्रिप्ट थी या कास्टिंग करी गई थी या शॉट्स लिए गए थे, एवरीथिंग वाज अमेजिंग. या हम्म if you see Family Man, or if you see films like these, और internationally अगर Money Heist है हाँ या दूसरे दूसरे हैं House of Cards, so you understand के what kind of real cinema is there in या the market. आई तो थिंक Indian या अगर हम वेब सीरीज की बात Indian करें, इंडियन वेब yeah सीरीज की, yeah तो उसमें yeah आई थिंक देयर इज अ ग्रेजुअल ट्रेंड जो अब मार्केट में आ गया है, जिसमें देयर आर लॉट ऑफ रियलिस्टिक स्टफ व्हिच इज गोइंग ऑन वेब सीरीज, बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ अब्यूजेस एज वेल. Like, do you think that, is it going on the right track, or do we want to probably mend the script a bit? see at the end of the day, if I talk about the reality thing, जो अब्यूजेस है वो जनरल, जब ये कैमरा ऑफ होगा, यही जो लोग देख रहे हैं, आप और मैं, वही कर रहे होंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ये रियलिटी है, ठीक है. सो इफ इट्स अ रियलिटी, व्हाई नॉट टू शो इट टू पीपल कि दिस इज एग्जैक्ट द रियलिटी. पाताल लोक में जो उस पुलिस वाले ने किया है वो रियलिटी है. जो अभिषेक बैनर्जी कर गया वो रियलिटी है. सो यू अंडरस्टैंड के उसमें अब्यूजिव्स है. अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखो, वहां पे भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होती है, वहां पे सेक्स यूज होता है, एवरीथिंग इज यूज बिकॉज ट्रेंड चेंज हो रहा है. इंडियन मार्केट भी तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि आज की डेट में यंग जनरेशन देखना चाहती है ये चीज, प्लस यंग जनरेशन ये चीज खुद करती है. सो आई डोंट थिंक यार कि इट्स कुछ प्रॉब्लम है इस चीज में शोकेस करने में. I think by the end of this session, we have got a lot of insights in your professional life, and in something your views and about your journey, and we have got to know some insights and some gossip from the Bollywood industry as well. So, and we really loved your two funny things that happened with you on set. So it was really nice having you. I hope that you had a wonderful time like we did. And do you have any last thank you so much for calling me, Raj. So I would just tell the actors यार कि just इस टाइप का टाइम चल रहा है अभी, to just keep going, just keep working on your craft right now, because यही टाइम है कि when you can actually work on your craft. ये अब टाइम नहीं है कि लोग ये नहीं कह सकते कि यार हम ऑडिशंस बाहर देखने जा रहे हैं और हम क्राफ्ट पे काम नहीं कर सकते. 4 महीने से घर बैठे हैं, अगर आप अभी भी काम नहीं कर पाए, it's really harsh on of me of saying के आप फिर छोड़ दो ये इंडस्ट्री, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्राफ्ट ही आपको आगे लेके जाने वाला है. वाजपेयी अगर मैं बात करूँ, या विक्रांत मैसी बात करूँ, जिम सराफ बात करूँ, कॉन्कना सेन शर्मा बात करूँ, आई हैव लिस्ट ऑफ एक्टर्स which I know are brilliant and are only known for their craft. So I would suggest के please work on your craft, and please when we call for auditions or ask for mails for your profiles, please be a little professional. जो आज की डेट में प्रॉब्लम है. So yeah, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा. I think we really would want to thank you for being with us for this 1 hour. I know that it's been a very tough. Yeah, I think it's been a very tough time and very tough situations, and you have scooped out time for us. I'm really glad, and I would want to thank you from the entire Brandgo family to come to have taken out. Thank you so much for calling me. Yeah. So lastly, I would like to tell my viewers that if you want to see more such inspirational stuff and stories, there are a lot of live sessions lined up. You can follow our handle and we will be happy to serve you. Thank you so much, ma'am, for... Thank you. Bye. Thank you Take care.